Yes, ma'am. Can you say what quantity means? Ma'am, quantity, ma'am, measurement of something. Very good. Measurement of something. I can say amount of any matter. Okay, is nothing but quantity, isn't it? Now, Yes, amount of any matter means I can say quantity is nothing but anything that can be measured. What did you say? All right. Now, how do we know amount or the measurement of something? So, if I say that go and bring sugar from a shop, can you bring it? अगर मैं बोलूं कि जाओ शुगर शुगर लेकर आओ तो क्या ले आओगे क्या? नहीं मैम, कितनी लानी है तो नहीं पता. Yes, exactly. We don't know about its quantity, how much. You'll just ask me how much sugar we have to bring. Okay. If I say bring one sugar, can you bring? ओ मैम. No. Why? मैम ग्राम है, कितनी लानी ये नहीं पता. Very good. We don't know one what? 1 gram, 1 kilogram, 1 piece, 1 bucket. ऐसा हमें कुछ उसका एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता कि हमें कितनी लानी है. राइट. तो एक क्वांटिटी कब कंप्लीट होगी? हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी? सो फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वांटिटी we need two things. Numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू. और उसके साथ में एक क्वांटिटी को डिफाइन करने वाली क्या? यूनिट. तब जाके हम किसी भी एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो अ क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड with the help of its numerical value. Numerical value means 1, 2, 3, 4, like that, any of the numbers. And what does its unit means? देखो, अभी हम शुगर की बात कर रहे हैं तो हमने ग्राम किलोग्राम इस तरह से लिया. अगर हम बात करते हैं कि ब्रिंग रोप, तो रोप के लिए हम 1 ग्राम किलोग्राम की जगह क्या यूज करते हैं? 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, लाइक दिस. ओके. सो हर एक अलग अलग क्वांटिटी के लिए अलग अलग स्पेसिफाइड यूनिट है. मतलब यूनिट क्या है? यूनिट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड रेफरेंस given to a particular physical quantity. To a particular physical quantity. जो स्टैंडर्ड रेफरेंस दिया है किसी भी एक क्वांटिटी के लिए, वही क्या होती है? हमारी यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से अबाउट द लेंथ, I can say any of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and I can take the unit meter. Okay. If I say length को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, any of the number n2 and its another unit say किलोमीटर. ऐसा कोई भी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस हम उसके साथ में ले सकते हैं. ओके. तो सबसे पहले आप ये लिख लो, व्हाट इज अ क्वांटिटी. I'll give you time to write. पहले आप समझ लिया करो, then I'll give you time to write. और मैं बताती जाऊंगी आपको कितना कितना लिखना है ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर होते जाए. ठीक है. तो आप लिख लो, क्वांटिटी इज अमाउंट ऑफ एनी मैटर और दैट आंसर्स टू हाउ मच. ये बॉक्स जो मैंने बनाया आप इसको लिख लो. You all are having copy pen along with you?
Samay and Alex, can you hear me? Yes, ma'am. Are you Yes, writing? ma'am. Yes, ma'am. Okay. When you have written these two boxes, just tell me. Have you written? Yes, ma'am. Okay. Now write representation of a physical quantity. यहाँ से आपको पूरा नोट डाउन करना है. यहाँ से पूरा representation of a physical quantity. यहाँ तक. Have you written? Yes, ma'am. Samay, have you written? Yes, ma'am. Okay, Utkarsh, you have already written it in our previous class. Okay. Okay, now we'll move forward. So I have written here standard unit given to a particular physical quantity. So what does this physical quantity means? So we have got a new word, physical quantity. Okay, so quantity on the basis of their measurement can be divided into two types. One is physical quantity and the other is non-physical quantity. Okay, now physical quantity. What does a physical quantity means? See, there are some quantities like length, like mass, like time, which we can measure. These all quantities can be measured, and there are many more quantities like this force. If we have to open a drawer or open a door, we can calculate the amount of force required to open it or close it. Okay, so the quantities, there are some quantities which can be measured either directly or indirectly. Okay, but there are certain quantities. For example, if I say that some curry is prepared at your home and it is very spicy. How much spicy it is? It is 1 kg spicy, it is 1 meter spicy, it is 1 second spicy. We cannot say anything like this. मतलब उसका नंबर नहीं पता हमें, उसकी यूनिट नहीं पता हमें, मतलब हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए तो अभी हमने पढ़ा न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए. तो नॉन फिजिकल कुछ क्वांटिटी जैसे कि स्पाइसी, इफ वी लव समवन, इफ वी हेट समवन, मतलब जो भी फीलिंग्स होती है हमारी, ये भी है तो सही क्वांटिटी, पर इनको हम मेजर नहीं कर सकते. तो दीज आर व्हाट, दीज आर द नॉन फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड. हमें कौन सी क्वांटिटीज पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ जिसको हम मेजर कर सकते हैं. सो वी विल ओनली स्टडी द फिजिकल क्वांटिटी. और फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? n into u, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट. यहाँ तक हमने पढ़ लिया. ठीक है.
लिख लो आप इसको, क्वांटिटी फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। हेलो, गुड इवनिंग सर, चंद्रिका बात कर रहे हैं विद्याशिखर ऑनलाइन क्लासेस से। विद्याशिखर ऑनलाइन क्लासेस से बात कर रही हूँ सर। मेरी बात हुई थी आपसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए, संसद की कॉमर्स क्लासेस के रिगार्डिंग थी। जी जी, हेलो संसद बात कर रहे हैं। संसद अपने कॉमर्स सब्जेक्ट क्या है ना 11th क्लास में, संसद कॉमर्स में कल से कॉमर्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हैव यू रिटन? हम लोग डिस्काउंट ठीक है, अगर टीचर के रिक्वायरमेंट होती है तो Samaya and Alex, have you written it? Yes, ma'am. Samay? Yes, ma'am. Okay. So, अब हम पढ़ना क्या? What we have to study? Physical quantities only. So, on the basis of their measurement, physical quantities क्या होती है? जिसको हम measure कर सकते हैं, तो वो further divided हैं कितने types में? 2 types में। On the basis of measurement हम उनको कैसे measure कर रहे हैं, directly और indirectly हमने बोला था ना। तो there are 2 types of physical quantities. कौन कौन सी? Fundamental quantities and derived quantities. Okay, what are fundamental quantities? फंडामेंट इसमें एक नाम आ रहा है, तो हम बोलते हैं हाँ फंडामेंट्स क्लियर होने चाहिए। मतलब क्या? बेसिक क्लियर होनी चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटी जो बेसिक हो वही क्या कहलाएंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब बेसिक मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक? बेसिक मीन्स इनके बेस पर हम और कुछ ऑब्टेन कर सकते हैं, और ऑब्टेन करा मतलब हमने उसको डिराइव कर लिया, तो वो क्वांटिटीज क्या कहलाएंगे? डिराइव क्वांटिटीज। सो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब बेसिक मैथ्स के लिए हम बोलते हैं बेसिकली होना चाहिए, मतलब मैथ्स के बेसिक 1 to 9 नंबर्स अगर हमें लिखना आते हैं तो हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, राइट? सो दीज आर द बेसिक नंबर्स। ऐसे ही ये बेसिक, जैसे वो 1 to 9 काउंटिंग होती है, ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल बेसिक कितनी क्वांटिटीज होती है? 7 एग्जैक्टली। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, लेकिन अगर हम डिराइव्ड की बात करें तो 1 to 9 नंबर लिखना आ गया, इसके बाद हमारे पास कोई फिक्स काउंटिंग है क्या कि हम इतने ही नंबर तक लिख सकते हैं? नहीं, उससे हम और कितने भी नंबर लिख सकते हैं 1 to 9 यूज करके, राइट? सो इन 7 के अलावा, जैसे 1 to 9 के अलावा बाकी सारे बेसिक नहीं है, ऐसी 7 के अलावा बाकी जितनी क्वांटिटीज दुनिया में है वो सब क्या है कि डिराइव क्वांटिटीज। सो एक्सेप्ट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, all other quantities are derived. Okay, फंडामेंटल क्वांटिटीज के एग्जांपल, लेंथ। हमें लेंथ को मेजर करने के लिए कोई और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ मेजरिंग स्केल, मेजरिंग टेप ले लेंगे और किसी भी रूम की, किसी भी टेबल की लेंथ विड्थ हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मास को मेजर करने के लिए फिर और कोई सी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वेइंग मशीन लेंगे और ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें
टाइम कैलकुलेट करना है कि अभी कितना टाइम हो रहा है, कितने टाइम बाद हमारी क्लास एंड होगी। अच्छा, कितने टाइम बाद एंड होगी से मुझे याद आया 40 मिनट्स बाद आपकी क्लास ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, तो आप लोग रीज्वाइन कर लेना। ओके, लेंथ, मास, टाइम। तो टाइम क्यों कैलकुलेट करने के लिए भी हमें किसी और चीज, किसी और क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो भी क्या है हमारे लिए, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। और ऐसी बहुत सारी, कितनी, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसी होती है, बेसिक। और इन 7 के अलावा जो भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी, उनके अलावा जितनी क्वांटिटीज है वो डिराइव। डिराइव की एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जो आपने पढ़ लिया है वो हम देखते हैं। फोर्स आपने पढ़ लिया है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स फाइंड करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट का मास पता होना चाहिए और आपको ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, तभी जाकर आप फोर्स फाइंड कर सकते हो। तो फोर्स को फाइंड करने के लिए आपको दो दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत है, मतलब इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके हम डिराइव करेंगे कि फोर्स है। इसका मतलब फोर्स कैसी क्वांटिटी है, डिराइव। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर दो क्वांटिटीज की जरूरत है, मतलब फिर ये डिराइव क्वांटिटी है। इफ आई टॉक अबाउट acceleration, acceleration means again velocity upon time. Again we will require two different quantities with the help of which acceleration can be derived, hence it is a derived quantities. समझ में आया? Is it clear to all? Until and unless you will respond, you won't respond me, I'll not be able to understand कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. Are you getting it? Fundamental and derived quantities. Samay, where are you? यस मैम। Are you getting it? हम क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? यस मैम, वो इधर थोड़ा पीछे डिस्टरबेंस होता है इसलिए म्यूट कर रखा है। हाँ, पर अनम्यूट करके बेटा रिस्पॉन्ड भी करो बीच बीच में, ठीक है? चलो इसको नोट कर लो आप ओके लोग, मैम। इतना नोट कर लो फिर आगे पढ़ते हैं। गुड इवनिंग सर, चंद्रिका बात कर रही हूँ लतेश से ऑनलाइन क्लासेस से। When you have completed with your writing part, just inform me, okay?
Have you written? Have you written it, Samaya and Alex? Yes, ma'am. Written. Samay, Yes, ma'am. have you written it? Yes, ma'am. So you should tell me na that ma'am we have written, completed, like that. We can move forward. Sure. Now, as we saw here that there are how many fundamental quantities total? How many fundamental quantities are there? 7. 7 fundamental quantities. So we'll learn these 7 fundamental quantities now. Okay. कौन सी 7 fundamental quantities है? I'll write the name. I'll write the units. And I'll write their name. I'll write their unit and the symbol of their unit. Okay. First is length. Its unit is meter. Its symbol is m. Second fundamental quantity is mass. Its unit is kilogram. Symbol is kg. Third fundamental quantity is time. Its unit is seconds. Symbol is S. Fourth is temperature. Unit is Kelvin. Symbol is K. Fifth is electric current. Unit is ampere. Symbol is A. Sixth is amount of substance. Unit is mole and its symbol is MOL. And the last is luminous intensity. Unit is candela and symbol is CAT. These are the 7 basic fundamental quantities. Okay, write it down in your copies. Are you writing? Somewhere. Yes, ma'am. Okay.
When you completed with your writing work, please inform me, okay? Have you written? Yes, ma'am. Samay? Written or not? Ma'am, 1 minute. Okay. I'm written. Okay. So these are the fundamental quantities with the help of which all other quantities can be derived. But sometimes for some angular quantities, there are two more fundamental quantities given, which are called as supplementary quantities. Okay. And these are first is plane angle. Its unit is radian and its symbol is RAD. And second one is solid angle. Plane angle means the angle formed between any two arms, and solid angles means outside a fixed point from a closed surface outside any point an angle is formed. It is called as solid angle. It is calculated in steradian. STR. It's short form is okay. There are two supplementary quantities also. You can write this also. After 5 minutes, your meeting will get over. Just rejoin it, okay? Have you written? Yes, ma'am. Samay. Yes, ma'am. Okay. Now we'll move further. See, in this fundamental quantities, I have written the unit of length as meter. Why not kilometer? Why not millimeter? Why not सेंटीमीटर? ये सब भी तो लेंथ की यूनिट है ना, पर हमने मीटर लिखा. मास के लिए किलोग्राम लिखा, ग्राम नहीं लिखा, मिलीग्राम नहीं लिखा. क्यों? Because there are certain system of units. कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफाइन की गई. ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहले जो डिफाइन हुई CGS सिस्टम ऑफ यूनिट. CGS सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब क्या? सेंटीमीटर, ग्राम, seconds. That means a system of unit
in which length is measured in centimeter, mass is measured in grams, and time is measured in seconds, तो वो system of unit क्या कहलाएगी? CCS system of unit. But when this unit was defined, तब ये सोचा गया कि सेंटीमीटर, हमारी स्केल में सेंटीमीटर के कुछ मार्क्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 यूनिट लाइक दैट, किसी में 15 तक, किसी में 20 तक, तो एक सेंटीमीटर बहुत स्मॉलर यूनिट है। तो उस स्मॉलर यूनिट के लिए अगर हमें कुछ लार्जर डिस्टेंसेस, लार्जर वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर सेंटीमीटर कब तक मेजर करेंगे? फॉर एग्जांपल वी हैव टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। क्या करेंगे हम? सेंटीमीटर 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 मेजर करते रहेंगे क्या? नहीं, इट इज वेरी स्मॉल यूनिट। तो फिर क्या हुआ? ये बहुत स्मॉलर यूनिट थी, इसलिए इस यूनिट को हटाकर साइंटिस्ट ने सोचा नहीं, इससे कुछ लार्जर यूनिट बनानी पड़ेगी। तो लार्जर यूनिट बनी। इसके बाद कौन सी? FPS सिस्टम ऑफ यूनिट बनी। FPS सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब क्या? वापस नाम से समझ में आ रहा है, फुट्स, पाउंड्स एंड सेकंड्स। ओके, इसका मतलब ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ को फुट्स में, मास को पाउंड्स में और टाइम को सेकंड्स में मेजर किया जाए, वो होगी FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। लेकिन फिर इस सिस्टम में देखा गया हमारी पहली वाली यूनिट से तो बड़ी बन गई, सेंटीमीटर से। सेंटीमीटर बहुत स्मॉलर होता है। फुट मतलब टिप ऑफ द फिंगर से लेकर हमारे एल्बो तक की अगर डिस्टेंस मेजर करें, नियरली मैं बोल रही हूँ, 1 फुट हो गया, ठीक है। पर ये डिस्टेंस वापस वही, अगर सेम यही डिस्टेंस हमें मेजर करना है इंडिया टू अमेरिका, वापस फुट 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 कब तक मेजर करेंगे? अगेन इट इज अ स्मॉलर सिस्टम ऑफ यूनिट, तो इसको फिर हटा दिया गया।